ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج منصوبے بھی تاخیر کا شکار۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج کے تحت گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن سمن آباد کے لیے 2 کروڑ مختص محکمہ بلڈنگ کی جانب سے منصوبے کے لیے تاحال ٹینڈر نہیں ہو سکے۔ اسی پر مزید بات کریں گے عمران اسلم سے۔ جی عمران۔ ڈیولپمنٹ پیکیج منصوبے بھی تاخیر کا شکار ہونے لگے ہیں۔ فیصل آباد میں مختلف تعلیمی اداروں کے لیے مختص کی گئی رقم کے تاحال ٹینڈر بھی نہ کیے جا سکے۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج کے تحت گورنمنٹ کالج گریجویٹ فار وومن سمن آباد کے لیے 2 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے، جس کے لیے کالج انتظامیہ نے محکمہ بلڈنگ کو ایک مراسلہ بھی جاری کیا گیا، جس میں متعلقہ ایس ڈی او اور جتنے بھی آفیسرز ہیں ان کو کالج انتظامیہ کی طرف سے ایک مراسلہ جاری کیا گیا، جس میں وزٹ کے لیے ریکویسٹ بھی کی گئی ہے، لیکن تاحال محکمہ بلڈنگ کی جانب سے منصوبے کی تعمیر و مرمت کے لیے تاحال ٹینڈر بھی نہ کیے جا سکے۔ یہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج کے تحت یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ تاحال محکمہ بلڈنگ کی جانب سے ٹینڈر کا نہ ہونا ہے، اور فیصل آباد ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج کے تحت تعلیمی اداروں میں جتنے بھی منصوبے ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج کے تحت گورنمنٹ کالج وومن سمن آباد کے لیے 2 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے، اور جس کے لیے محکمہ بلڈنگ نے تاحال فنڈ لیزنگ کے متعلق ایسٹیمیٹڈ کاسٹ بھی نہ بنائی۔ جی ٹھیک ہے عمران اسلم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں بلدیات بحال مگر فنڈز نایاب ہو گئے۔ ضلع کونسل کے چیئرمین نے 2 ماہ میں ترقیاتی اسکیموں کی منظوری کا مطالبہ کر دیا تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مہیا کیا جا سکے۔ اسی پر بات کریں گے عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان بتائیے گا۔ بلدیات بحال کی جا چکی ہے، لیکن اس حوالے سے کچھ ریزرویشن بھی ہے، چیئرمینوں کے مطالبات بھی ہیں۔ تو رانا شاہ رضا خان ہمارے ساتھ موجود ہے، ضلع کونسل کے چیئرمین ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ صاحب بتائیے گا، ابھی جو بلدیات بحالی کے بعد کون سے مطالبے باقی رہ گئے ہیں آپ کے؟ کیا ریزرویشن آپ کی اس سسٹم کے متعلق؟ یہ عبد البری بہت شکریہ۔ پہلے تو سب سے پہلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مختصراً یہ کہ ابھی چونکہ ہمارے پاس صرف 2 ماہ کا ٹائم ہے دسمبر تک کا، تو میری گزارش ہے، سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ چیئرمین ہیں چودھری اظہار نذیر صاحب، ان کو روزانہ کی بنیاد پہ ضلع کونسل آنا چاہیے، اور جو بھی ہمارے مسائل ہیں چیئرمینوں کے ان کو سننا چاہیے اور ان کے حل کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ فل فور گورنمنٹ کو جو ہمارا پی ایف سی وارڈ ہے ڈسٹرکٹ کا، اور جو تحصیلوں میں پڑے ہیں فنڈ فل فور ضلع میں وہ بھیجنے چاہیے تاکہ یونی کونسل کو پیسے مل سکیں۔ دوسرا ہمارا یہ ہے کہ جو تمام اداروں کو با اختیار بنانا چاہیے، اور تیسرا ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارے 27 ماہ گورنمنٹ نے یہ کھا لیے ہیں، جو ہمیں سسپینڈ رکھا گیا ہے، ہمارا بھرپور مطالبہ ہے گورنمنٹ پنجاب سے اور مرکزی گورنمنٹ سے، اور پرٹیکولرلی میرا سپریم کورٹ آف پاکستان سے چیف جسٹس صاحب سے میرا مطالبہ ہے، چونکہ انہوں نے خود ہمیں بحال کیا ہے، اور 15 کو بھی انہوں نے خود ہی ہمارا کیس کو جو کوڈ آف کنڈمٹ تھی خود سنا ہے، تو میری ان سے گزارش ہے کہ ان کو ہمارا جو ٹرن اوور ہے وہ بھی واپس دینا چاہیے۔ اور اینڈ پہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے ضلعی چیئرمین ہیں چودھری اظہار نذیر صاحب، وہ 27 ماہ کسی بھی چیئرمین کے ساتھ رابطے میں نہیں رہے، بلکہ ان کا فون بھی بند رہا ہے۔ اب گورنمنٹ نے ہمیں بحال کر دیا ہے، تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ان کو تمام چیئرمینوں کو اکٹھے ساتھ لے کے چلنا چاہیے، ان کو کسی قسم کی تفریق نہیں کرنی چاہیے، سارے چیئرمین ایکول ہیں، سب کو ایکلی ٹریٹ کرنا چاہیے، اور ضلع کونسل میں روزانہ کی بنیاد پہ آنا چاہیے، چیئرمینوں کے مسائل سننے چاہیے، اور اکٹھے بیٹھ کے تمام ہی مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں لوگوں نے، عوام نے ووٹ دیا ہے، ہم نے چودھری اظہار نذیر صاحب کو سلیکٹ کیا ہے، ہم اکٹھے مل کے کام کریں گے تو فیصل آباد کی ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ جو اس حوالے سے مطالبہ یہی ہے کہ یہاں پر 27 ماہ کا عرصہ جو ضائع ہوا ہے وہ انہیں دیا جائے۔ اس کے علاوہ ضلعی چیئرمین چودھری اظہار نذیر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ جتنا ٹائم باقی رہ گیا یہاں پر موجود رہیں تاکہ اگر کوئی کام ہو سکے۔ ترقیاتی کاموں کا مطالبہ کیا ہے عبدالرحمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مدثر بخاری کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں مزدوروں کے سوشل کارڈ سمیت چائلڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں شاہد محمود سے۔ جی شاہد۔ جی بالکل، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مدثر بخاری کی زیر صدارت جو ہے ایک اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں بھٹوں پر کام کرنے والے مزدور جو ہیں خواتین، اس کے حوالے سے جو اقدامات کے جو کیے گئے ہیں اس حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ اس وقت میرے ساتھ موجود بھی ان سے بات بھی کر رہے ہیں۔ مدثر صاحب کس طرح دیکھتے ہیں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کیا آج فیصلے کیے گئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہماری ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی کی میٹنگ ہے، جس میں ہم سرکاری ادارے، ہمارے انوائرنمنٹ، لیبر ڈپارٹمنٹ اور باقی جو کنسرنڈ ادارے ہیں،
सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है वो हम अपनी प्रोग्रेस इवेलुएट करते हैं मजदूर यूनियन को साथ बिठा के। तो उसमें मेन हमारा एजेंडा आइटम जो था आज वो सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो हैं जिसके मजदूरों को बहुत बेनिफिट्स हैं उसकी जो है ना हम प्रोग्रेस जो है उसको इवेलुएट किया है। और जो हमारे भट्ठा मालकान हैं वो भी इस चीज़ में ऑन बोर्ड हैं। तो हमने एक डेडलाइन सेट की है, उस वक्त तक हम जो है ना ये कार्ड्स प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो हमारी एक्टिविटी होती है चाइल्ड लेबर के लिहाज से, बॉन्डेड लेबर के लिहाज से, उसकी जो है ना प्रोग्रेस हमने चेक की है। तो मज़ीद जो है ना इस काम को बेहतर करने के लिए कुछ फैसले किए गए जो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। जी बिल्कुल, जिसमें बात सुनी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सिर बुखारी का कहना है कि खास तौर पर जो है काम करने वाले मजदूर उनके हवाले से जो सिक्योरिटी सोशल कार्ड है उस हवाले से इक़दाम किए गए और चाइल्ड लेबर की जो एक्ट की खिलाफ शाहिद महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आपको बताएं कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की कायमा कमेटी का इजलास हुआ। आटे की हुकूमती कोटे समेत कीमतों और उसकी दस्तयाबी पर बातचीत की गई है। बात कर लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जो कायमा कमेटी है उसका इजलास आज मुनक्किद हुआ है, जिसको चेयर कर रहे हैं चेयरमैन कायमा कमेटी अब्दुर्रहमान साहब। आज आटे की अवेलेबिलिटी, उसकी कीमतें, उसके कोटे के हवाले से गुफ्तगू की गई है। मजीद का एजेंडा रहा है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अब्दुर्रहमान साहब ये बताएगा कि इस वक्त डॉलर की प्राइस बढ़ रही है और महंगाई भी हर तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अब आटे की कीमतें कुछ स्टेबल नज़र आ रही हैं, बढ़ नहीं रही लेकिन रुक गई हैं, कम भी नहीं हो रही। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या ये कीमतें मुस्तहकम रहेंगी, आगे बढ़ने के चांसेस तो नहीं है? और इसकी अवेलेबिलिटी के हवाले से बताइए। जी शराज, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आटे की अवेलेबिलिटी और कीमतों की वजह से मार्केट में इस्तेहकाम है और हम चाहते हैं कि ये इस्तेहकाम बरकरार रखे। लेकिन इस वक्त जो फ्यूल प्राइसेस और दूसरे रोज़मर्रा अशिया की जो चीज़ें हैं उनमें जैसे इन्फ्लेशन आ रहा है, तो उसमें भी हमें है कि जो कोटा गवर्नमेंट हमें देती है वो बाज़ औक़ात हमें डिवीज़न्स फैसलाबाद से आउट दूसरे डिवीज़नों से लाना पड़ता है। तो उसमें जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। तो उसकी कोटे की एलोकेशन के मतलब फैसले किए गए हैं कि गवर्नमेंट हमें जो है ना महकमा हमें लोकल सेंटर से जो है ना वो गंदम प्रोवाइड करे। और दूसरा जो हमें सैम्पलिंग के मसाइल हैं, महकमे के साथ वो हमारे आटे के सैंपल्स लेते हैं, उसकी लेबॉर्ट्री के बारे में और महकमे के बारे में जो भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसके लिए हमने एक लाए अमल और एक प्रपोज़ल बनाया है। वो इंशाअल्लाह ताला हम महकमे को और हायर अथॉरिटीज़ को वो अपना प्रपोज़ल भेजेंगे कि हमें सैम्पलिंग किस तरह की जाए, क्योंकि उसमें सैम्पलिंग में बहुत ज़्यादा बहाम पड़े जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर लेबॉर्ट्रीज़ नहीं है जिसमें वो सैम्पलिंग भेजी जाए, और वो चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम नहीं है। वो वन वे ट्रैफिक है महकमे की तरफ से, और वो फ्लोर मिल के लिए क्वालिटी के पे बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है। सैम्पलिंग के हवाले से जो जदीद सहूलियात ना होने की वजह से चीज़ें मामला जो है ताख़ीर का शिकार भी होती हैं। तो इस वक्त फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से जो इजलास आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में मुनक्किद किया गया था, उसको चेयर कर रहे थे अब्दुर्रहमान साहब, और उनके साथ साथ शायद। ठीक है शराज भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का तीसरा टाकरा है। आज मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला कर लिया है। शायकीन क्रिकेट मैच के लिए काफी पुरजोश है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अली रजा से। अली रजा, बताइएगा शायकीन क्रिकेट कितने पुरजोश हैं? आज ही बिल्कुल 2 टाकरे जीतने के बाद अब जो है वो तीसरा टाकरा अफगानिस्तान के साथ है। पाकिस्तान मैच जिसमें अफगानिस्तान ने जो है वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान के शाहीन ग्राउंड के अंदर पहुंच गए। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद रोड के ऊपर मौजूद है और बड़ी एलसीडीज पे जो है वो मैच भी देखे जा रहे हैं। शायकीन क्रिकेट मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप मैच के हवाले से, पाकिस्तान को कैसे देख रहे हैं मैच के? पाकिस्तान की टीम तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जा रही है, बकाया अल्लाह पाक खैर करे। ये जो इनके साथ मैच है इनको भी भरपूर तरीके से हराएंगे और जो भी है इंशाल्लाह अच्छा होगा। पाकिस्तान जीतेगा। आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान और आज अफगानिस्तान का मैच है, 2 मैच हरा दिए, उसमें इंशाल्लाह ताला जो हम 2 मैच जीत सकते हैं। जितने भी मैच हो गए हम इंशाल्लाह जीतेंगे, और जो तीसरा मैच हम इतना जीतेंगे कि सब दुनिया हैरान रह जाएगी।
तीसरा टाकरा जो है वो ग्राउंड के अंदर खेलने के लिए ग्राउंड के अंदर मौजूद है। शायकीन जो क्रिकेट है उस वक्त रोड के अंदर मौजूद है और नारेबाजी कर रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। शायकीन क्रिकेट काफी पुरजोश है। अली रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन मसूद अहमद निजामी मिनहाज सर्विस मुकम्मल होने पर रिटायर्ड हो गए। एंटी करप्शन रीजनल ऑफिस में मसूद अहमद निजामी के एजाज में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया है। बात कर लेते हैं वकास बेग से। जी वकास। जी बिल्कुल, सरकारी महकमे में अफसरान का आना और तैनात का होना ये तो मामूल का हिस्सा है, लेकिन सर्विस मुकम्मल करने के बाद किसी भी सरकारी अफसर का रिटायर होना जो है उसके साथियों के लिए एक अहम लम्हा होता है। जब एक साथी मुस्तकिल एक लंबे अरसे तक किसी सरकारी महकमे में अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम देता है और फिर उसके बाद रुखसत चाहता है। इसी तरह एंटी करप्शन फैसलाबाद में मसूद अहमद निजामी साहब असिस्टेंट डायरेक्टर, जिन्होंने आज अपनी सर्विस मुकम्मल की और सर्विस के इख्तिताम पे तमाम तर साथियों की जानिब से एक अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। इस वक्त डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद बाहर अजमल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आप ही बताइएगा कि खूबसूरत साथी का एक लंबा अर्सा तक आपके साथ काम करता है और फिर रुखसत जो करने लगा किस तरह से एंटी करप्शन ने एक रवायत कायम की कि जाने वाले साथी को अलविदाई तकरीब पर क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका इस कवरेज के लिए। साहिब मसूद निजामी साहब यहाँ पे महकमा एंटी करप्शन को अपनी ज़िंदगी के 36 साल देकर आज रिटायर हो रहे हैं। तो इस मौका पर जिस तरह के है दूसरा गाड़ी होता है जो दफ्तर होता है, जो मुलाजमत होती है, वो एक इंसान के लिए बहुत ही अहम और एक लाजमी हिस्सा होता है उसकी ज़िंदगी का। तो इस मौके पर जब हम इनको रुखसत कर रहे हैं तो आपने जैसे महसूस भी किया, सब दोस्त कलीग्स जाहिद साहब के मेरे समेत दुखी भी है और इनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार भी कर रहे हैं। तो जितना इन्होंने अर्सा गुजारा है माशाल्लाह यहाँ पर बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी अच्छी मेहनतामी के साथ इन्होंने महकमा एंटी करप्शन में बहुत सारे अंजाम दिए। तो इस तरह हम अपनी अच्छी के साथ हमारी मुहब्बत और ख्वाहिशात हैं कि आइंदा ज़िंदगी में ये खुशनुमा रहे और अच्छा। बिल्कुल, तमाम तर साथी नई ख्वाहिशात का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर मसूद अहमद निजामी साहब जो आज अपने अहदे से रिटायर हो गए, उसके मसले मौजूद है। सर, ये बताइएगा कि 36 साल का अर्सा गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में आपने दिया, आप SHO भी रहे, उसके बाद आपने जनाब एंटी करप्शन में भी एक अच्छा वक्त गुजारा। बड़े बड़े जो फैसलाबाद के कब्जा माफिया थे उनसे ज़मीनें भी वाक़िफ़ करवाई। आज रिटायरमेंट के मौके पर क्या कैसा लग रहा है? आइंदा ज़िंदगी के बारे में साल का अर्सा गवर्नमेंट सर्विस में गुजारने के बाद रिटायरमेंट के बाद बड़े गुनगुन की कैफियत होती है कि आप अच्छे दोस्तों से जुदा होने की कैफियत होती है। जहां आपने अपने खून से आप यारी की हो वहां फिर जाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम चनाब नगर में जारी 2 रोज़ा सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। इख्तितामी नशिस्त में सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान समेत मुल्क भर से आए उलमा कराम ने शिरकत की। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से जय्यद उलमा कराम, मशाइख, सियासी शख्सियात समेत हजारों शमाए रसालत के परवानों ने शिरकत की। इख्तितामी नशिस्त से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इस्लाम की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी थी, मगर रियासत मगरब को खुश करने में लगी हुई है। जो कुव्वतें मगरब के लिए इस्तेमाल हो रही हैं उनका मुकाबला जरूरी है। पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए कानून पास करना अहम संग मील था, इसमें कोई तरमीम कबूल नहीं करेंगे। सोची समझी साजिश के तहत उलमाए कराम को सियासत से दूर रखकर इस्लाम और मुल्क दुश्मन अनासिर को खुश किया जाता है। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का डिविजनल सेक्रेटेरिएट में इजलास। शोहदाए पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज अकीदत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई है। मजीद बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से शोहदाए पाक फौज के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम डिवीजनल सेक्रेटेरिएट में किया गया। इसी पर मजीद बात करने के लिए
मेरे साथ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीजनल सदर आसिफ रज़ा कादरी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आज की इस तकरीब के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़रिए तमाम अफ़गान बॉर्डर पर जो पाक फ़ौज के 2 जवान शहीद हुए हैं उनको खराज तहसीन और उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया है और ये पैगाम दिया गया है कि हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहती है। पाकिस्तान आलम इस्लाम की वाहिद एटमी क़ुव्वत है और पाक फ़ौज जो है वो हमारी मुहाफ़िज़ है। आज अगर हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े होंगे तो फ़ौज का मोराल बुलंद होगा। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यही पैगाम दे रही है कि हम अपने शुहदा के साथ हैं, उनके बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की गई है और इंशाअल्लाह कोई भी मसला होगा हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े होंगे। दूसरा, हम अफ़गानिस्तान की हुकूमत को भी ये पैगाम देते हैं कि वो अंदरूनी मामलात को ठीक करे। ऐसे मामलात से जो सफारती तल्लुकात हैं वो ख़राब होते हैं। हुकूमत को भी चाहिए कि पूरी दुनिया में ये पैगाम दे कि अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं उनके लिए एक बेहतर हिकमत अमली बनाए। पूरी दुनिया जो है वो आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सलामती ही जो है वो पाक फ़ौज की वजह से है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक शुहदाए पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करती है और उनकी कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ये तकरीब मैं रस्मत, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि चिन्योट में ब्रेस्ट कैंसर से बचाव और खवातीन में आगाही के लिए महकमा सेहत के ताउन से अली अस्पताल में एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। फ्री मेडिकल कैंप में माहिर इब्राज ने क्रोनिक ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए आगाही दी है। बात करते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा। दुनिया भर समेत चिन्योट में माह अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के तौर पर मनाया जा रहा है और इस साल से अली अस्पताल में एक रोज़ा कैंप का इनेकाद किया गया है जहां पर खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर से आगाही दी गई है। हमारे साथ माहिर अमराज डॉक्टर अनम ज़ारा मौजूद है, हमसे भी बात करते हैं। मैम, बताइएगा कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बड़ी तेज़ी से खवातीन में फैल रहा है, इसकी तदारुक के लिए और इसकी आगाही के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जैसे आपने देखा है कि आज हमने ये जो अली हॉस्पिटल में कैंप का इनेकाद किया है, सबसे पहले हमारे सबसे ज़्यादा जोर हमारा एजुकेशन और अवेयरनेस पे है औरतों के लिए। जैसे कि हमने उनको खुद अपना मुआयना करने के बारे में बताया है कि वो खुद अपना मुआयना कैसे कर सकती हैं। घर में बाकी औरतें हैं, छोटी बच्चियां हैं, वो अपनी मदर को बताएं अगर वो ऐसा कुछ महसूस करी हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं, साइंस हैं कि जिन चीज़ों की वजह से कि उनको पता चल सकता है, इसमें कोई ना कोई गिल्टी महसूस हो सकती है, उनको कोई दर्द महसूस हो सकती है, जो आपकी ब्रेस्ट की जो स्किन है उसकी कोई डिस्कलरेशन हो सकती है, कोई एबनॉर्मल साइज, एबनॉर्मल मैस, उसको वो खुद खवातीन जो है हम ये एजुकेट करते हैं कि आप खुद उसको डायग्नोज करके हमारे पास आएँ, डॉक्टर के पास आएँ, स्पेशलिस्ट के पास आएँ। उसके बाद अगला ट्रीटमेंट ऑप्शंस और स्टेजिंग वगैरह जो होती है, इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। अगर तो खवातीन स्टेज 1 पे, स्टेज 2 पे डायग्नोज हो जाए तो वो फुली ट्रीटेबल होती हैं, मुकम्मल तौर पे कैंसर से अपनी छुटकारा हासिल कर सकती हैं। खुदा ना खासा 3-4 स्टेज पे जो आती हैं वो ज़रा कभी कभार ठीक होती हैं और कभी खुदा ना खास्ता उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो हमारी अवेयरनेस ये है कि जल्दी डायग्नोज हो और जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो और ताकि खुदा ना खास्ता किसी अपनी जान से उनको हाथ ना धोना पड़े। बस ये हमारा आज का जो है हमारा एम ये है कि औरतों को एजुकेट किया जाए कि वो घर से निकल के अस्पताल आएँ अगर ऐसा कुछ महसूस करें। बिल्कुल, ब्रेस्ट कैंसर से आगाही दी जा रही है और इस वक्त से अली अस्पताल चिन्योट में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है जहां पर दर्जनों ऐसी खवातीन हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही दी जा रही है। इस वक्त से माहिर अमराज का ये कहना है कि खवातीन को एजुकेट करना होगा और उनको इस मर्ज के बारे में बताना होगा ताकि ये बढ़ती हुई जो मौलिक मर्ज है इसका जो है इसकी बरोबर तशखीस के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही दी जा रही है। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए